یہ ہے سوات کا قدیمی حجرہ جہاں بڑے بڑے تاریخ ساز فیصلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس حجرے کی تاریخ ریاست سوات سے بھی پرانی ہے۔ اس حجرے میں پرانے اور تاریخی نوادرات کون کون سے موجود ہیں؟ پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگ اس حجرے کو دیکھنے کیوں آتے ہیں؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سر، سب سے پہلے اپنا تعارف کیجیے اور یہ بتائیے کہ یہ حجرہ کب تعمیر ہوا تھا اور یہ کتنے رقبے پر مشتمل ہے؟ میرا نام اسرار عالم ہے اور میں یونیورسٹی آف بنیر میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا ہوں، اور یہ حجرہ میرے پردادا نے تعمیر کیا تھا، اور اس کی جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ تقریباً 1938 میں کمپلیٹ ہوا تھا، اور اس کی جو سٹارٹ جو ہے وہ 1935 میں ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو پردادا تھے یا ان سے پہلی جو ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے بھی یہاں پہ اسی حجرے کی تعمیر سے پہلے بھی اسی زمین پہ وہ مختلف جرگے کرتے تھے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ جرگے منعقد کرتے تھے تاکہ لوگوں کی اصلاح اور ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ اصلاح ہو سکے۔ یہ بتائیے کہ آج بھی وہی جرگوں کا سسٹم آج تک جاری ہے اس حجرے میں؟ جی الحمدللہ آج تک وہ جاری ہے، اور اس حجرے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہاں پہ کافی سارے جو ہے وہ جرگے ہوتے ہیں، اور وہ جرگے ہمارے سماجی اور معاشرتی جو اصلاح اور بڑا ہے اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر جو گھریلو وہ جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ سالو ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ کون سا ایسا بڑا جرگہ ہوا ہے یہاں جو کہ کامیاب ہوا ہے، عدالتوں وغیرہ کی ضرورت ہے، چکر نہیں لگانی پڑی، تو ایسا کون سا بڑا جرگہ ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے، کامیاب جرگہ؟ جی کامیاب جرگہ تو یہ ہے کہ 1977 میں یہاں پہ جو جائیداد کی تقسیم تھی وہ ہو چکا ہے، اور وہ تقریباً آج تک جو ہے وہ لوگ اسی پہ عمل پیرا ہے، اور اس کے ساتھ جو پٹوار خانے میں جتنے بھی ریکارڈ ہے وہ اسی بیس پہ جو ہے وہ قائم ہے، اور الحمدللہ جتنے بھی فیصلے ہو چکے ہیں تو وہ جو ہے قابل عمل ہے ابھی تک۔ کوئی قتل و غارت، دشمنی وغیرہ کے مسئلے بھی حل ہوئے؟ جی بالکل الحمدللہ، یہاں پہ جتنے بھی قتل و غارت کے اکثر مسئلے آتے ہیں تو ان کے درمیان صلح اور وہ ساری جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ کافی سارے، اگر میں آپ کو اس کے نام بتاؤں تو تقریباً جو ہے وہ 25-30 ایسے مسئلے ہیں کہ وہ مختلف خاندانوں کے درمیان تھے، وہ ایک دو گھر کے درمیان نہیں تھے لیکن سارے خاندانوں کے درمیان تھے، وہ الحمدللہ حل ہو چکے ہیں اسی حجرے کے تھرو، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے سماجی اور اصلاحی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک درسگاہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک اہم کردار اس میں ادا کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ اس حجرے کو بنانے میں آپ کے خیال سے آپ نے بزرگوں سے سنی ہوگی کتنی محنت کرنی پڑی ان کو؟ محنت تو بہت زیادہ کرنی پڑی، کیونکہ یہاں پہ جو جدید مشینری ہے وہ سارا کام اس میں جو ہے وہ جدید مشینری سے کام ہوا ہے، اور جدید مشینری کا ایک بھی استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کن کن چیزوں سے بنا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے زیادہ تر مٹی اور پتھر سے اس کی دیواریں بنے ہیں، اور مٹی بھی جو ہے وہ مختلف جگہوں سے اس کے لیے لائے تھے تاکہ اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن مضبوط ہو، اور دوسری یہ اس کی جو لک جو ہے وہ بہتر ہو، اور اس میں زیادہ تر کام جو ہے وہ لکڑی کا ہے، اور لکڑی جو ہے وہ بھی ایک خاص درخت جو ہے وہ جو دیار ہے، اور اس کا سائنٹیفک نیم جو ہے سیڈرس دیودارا ہے، اس کا پلانٹ جو ہے وہ اس میں یوز ہو رہا ہے، سارا لکڑی جو ہے وہ اسی کا ہے۔ ویسے ہی اب بھی ویسے ہی حالت میں محفوظ ہے یا وقتاً بوقتاً کام ہوتا رہتا ہے؟ جی تقریباً 2019 تک جو ہے وہ بالکل اسی حالت میں تھی جس حالت میں تعمیر ہو چکی تھی، لیکن 2019 میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ ابھی اس کی جو مینٹیننس ہے اس کو دیر پا کرنے کے لیے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ریفربشنگ کا کام چاہیے، تو 2019 میں پھر ہم نے اس کی جو ہے وہ ریفربش کیا، اور ریفربش کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ اس کی جو جتنی لائف ٹائم ہے اس میں تھوڑا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، اندر کون کون سی ایسی روایتی چیزیں موجود ہے یا ایسی تاریخی چیزیں موجود ہے جو کہ آج بھی دیکھنے کے قابل ہے اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ اچھا جی، اس میں تو ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تاریخی صندوق پڑا ہے جس میں اکثر یہ جو علاقے کے جتنے بھی مشران تھے اس کی جو سادہ ہم
हम कह सकते हैं कि एक बायोडाटा जो थे या जितनी भी रिकॉर्ड की जो है वो चीज़ें थी वो इसमें रखते थे। इस किस्म की संदूकें तो आजकल के दौर में बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो उसी ज़माने में जो थे उसके हमने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है और लकड़ी भी ऐसी कि ख़राब भी नहीं हुई है, वैसी हालत में बिल्कुल उसी हालत में है। और उसकी जो कशीदकारी का काम है वो भी बहुत मदीदा ज़ेब है, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि उस अगर हम देखें तो उस जदीद मशीनरी नहीं थी, सारा काम जो है वो हाथ के ज़रिए होते थे, तो हाथों का काम। और इसके साथ जो है वो पुराने ज़माने का जो फ़ाइल थी, वो फ़ाइल जो है वो अक्सर मशरान कहते थे कि तकरीबन वो जो है वो 1800 का फ़ाइल है। तो वो बहुत ही, जिस तरह हम ये डॉक्यूमेंट्स का फ़ाइल जो उस तरह के फ़ाइल जो है वो पड़ा हुआ है। और पुराने ज़माने में रोशनी के लिए जो चिराग के तौर पर जो वो लालटेन यूज़ होते हैं तो वो पड़े हैं। पुराने ज़माने के जो तिलावत के लिए कुरान मजीद के जो राहेल यूज़ होते हैं वो है। और सबसे पहले हमारे परदादा की जो पगड़ी है वो भी तकरीबन उनकी जवानी के ज़माने की थी, तो वो भी पड़े हुए हैं। तो अक्सर लोग जब आते हैं तो ये सारी चीज़ें उसको जो है वो पुरकशिश को नज़र आते हैं और उनको अपनी तरफ राग़िब करते हैं। इस हुजरे में एक अनोखा और पुराना सिस्टम भी मौजूद है जो कि बहुत कम पाया जाता है आजकल के माशरे में या आजकल के दौर में। ये सिस्टम है, आजकल तो हैंड पंप्स होते हैं, लेकिन ये हैंड पंप, ये आप देखें, ये बाल्टी डाली जा रही है कुएं के अंदर और इसका जो हैंड पंप है वो भी लकड़ी का बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये बताइए ये क्या सिस्टम है? ये तो बहुत पुराना सिस्टम है, आजकल के दौर में ये बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ये कैसे आप बाल्टी अंदर डाल के और पानी निकालते हैं इस कुएं से? जी बिल्कुल। ये पुराने ज़माने का जो चरखा सिस्टम है वो है, जिसको आजकल हम जो है वो सरखा भी कहते हैं या एडवांस फॉर्म में जो है इसको हम हैंड पंप भी कह सकते हैं। ये इसको पश्तो नाम जो इसका है, इसका डिंगरई नाम जो है वो इसका नाम है, जो प्रॉपरली पश्तो ज़बान में जो है वो इसके लिए यूज़ होते हैं। डिंगरई जो है वो असल में ये है कि इसकी जो ये स्टैंड है इसी वजह से इसका नाम जो है वो डिंगरे रखा हुआ है। और इसकी लकड़ी जो है ये तकरीबन इसकी तारीख़ हिजरी से भी पहले का है। बताया जाता है कि तकरीबन ये 1890 का जो है ये चीज़ यहाँ पे तामीर हुआ है। और इसकी जो लकड़ी जो है वो ज़्यादातर वो जैतून एक दरख्त जो है उससे लगी है और इस वजह से इसकी मजबूती जो है वो अभी बरकरार है। तकरीबन मोर देन 130 ईयर्स जो है इस पे गुजर चुके हैं, लेकिन अब भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत है। इसमें यह है कि ये एक स्टैंड है, ये सपोर्ट दिया हुआ है इसको, इस लॉन्ग जो वुड है इसको, यहाँ पे इसके एक सिरे पे जो है ये वज़न रखा जाता है। और वज़न भी जो है इसके लिए जी पत्थर है और इस पत्थर को जो है वो हाथों से इसमें सुराख किया हुआ है ताकि इसकी जो वज़न है एक सिरे पे पड़े। और दूसरे सिरे पे जो है ये आप दे सकते हैं, यहाँ पे इसके जो बाल्टी लगी हुई है जिसको पानी को निकालने के लिए जो है ये यूज़ होते हैं। इसको रस्सी जो है वो आप नीचे की तरफ जब आप इसको खींचते हैं तो इसकी जो बाल्टी है पानी की निकालने के लिए वो नीचे चला जाता है। इस तरह जब ये पानी से भर जाए, यहाँ से तकरीबन ये पानी की सतह तक जब पहुँच जाए इस तरह, तो कैसे पता चलता है कि पानी से भर गया बाल्टी? ये आप हाथ से भी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाल्टी जो है वो पानी तक पहुँच गया है। और यहाँ से कुएं का पानी जो है वो भी नज़र आते हैं। फिर यहाँ से जब आप इसको छोड़ते हैं तो उधर से उस साइड से जो है वो पत्थर उस पर प्रेशर डालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो अगर आप देखें तो एक हाथ से भी इसको निकाल सकते हैं। हाँ, वज़न जो है उसको उठाने में बिल्कुल जो है वो दिक्कत नहीं होती। फिर जब यहाँ से ये पहुँच जाए तो ये पानी जो है वो निकल आते हैं। ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो इसके जो है अगर हम देखें, क्योंकि पुराने ज़माने का एक सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये है कि इसकी जो IQ लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि बंदे को ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। और पानी भी ज़्यादा मौजूद होती है इसमें? बिल्कुल ज़्यादा मौजूद होते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हम चूँकि मॉडर्न दौर के लोग हैं और हम ज़्यादातर अदालतों का इंसाफ पसंद करते हैं, अदालत इंसाफ ये है वो है, तो ज़्यादातर जरगे जो है वो अब ज़्यादातर ख़त्म होते जा रहे हैं। क्या समझते हैं जरगों का सिस्टम इस माशरे के फ़ायदे के लिए
लिए मुफीद यानी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इस माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है? अगर हम देखें तो जब से हमारा ये निज़ाम सुस्त हो गया या ख़त्म हो गया, इस तरह ख़त्म होने जा रहे हैं, तो वहाँ से लेके अब तक हमारे डिस्प्यूट भी बढ़ रहे हैं। और जहाँ पर जिरगा सिस्टम है, तो जिरगा सिस्टम के लिए बेहतरीन रेजोल्यूशन या बेहतरीन उसके हल के लिए एक ये जो निज़ाम है हुजरा सिस्टम, ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर सारे मसले हल भी होते हैं और ये एक तरबियतगाह भी है। यहाँ पर हमारे छोटे जो बड़े होते हैं वो अपने बड़ों के असलाफ की नक्श कदम पर चलते हैं। और साथ साथ में जो ये जितने भी निज़ाम हैं, इसको अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे अभी जो अदालती निज़ाम है वो इतना सुस्त है कि यहाँ पर जो अगर आप देखें तो वहाँ पर लोगों के फ़ैसले नहीं होते। अब इतने सारे केसेस हमने देखे कि लोग मर भी चुके होते हैं, तब उसके बाद उनको हेयरिंग का मौका मिलता है। लेकिन जो जिरगा सिस्टम है ये इतना अहमियत है इनका, अगर आप देखें तो सारे मसले 2-3 सिटिंग के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल इनका अहमियत बहुत ज़्यादा है। और अभी तो अब ये देखिए जिस तरह कमर्शलिज़म है, लोग हुजरों से जाके जो है बैठक की तरफ चले गए, वो ड्राइंग रूम की तरफ चले गए, तो आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम बैठ रहा है और इसको बैठना नहीं चाहिए। उसको हमने मज़ीद स्ट्रेंथिंग करना है और इसके ऊपर हमने काम करना है ताकि ये निज़ाम भी बेहतर हो और हमारे जो मसले मसाइल हैं जहाँ पर अमन एक बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए भी हम जर्गी की तरफ जा सकते हैं। लोकल डिस्प्यूट है, लोगों के और मसले मसाइल होते हैं, अदालतों के पास इतने सारे केसेस हैंडल करने के लिए वक्त नहीं होता है, हमारे जजेस कम हैं, हमारे जो वकला का जो सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये है कि हम जर्गे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा भी सकते हैं।